Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So market is closed on 243 point plus on Nifty 17,854. So बड़ी रैली आई आज मार्केट में. सेंसेक्स इज प्लस अराउंड 909 पॉइंट प्लस एट 60,840. So 41,499 is the closing for Bank Nifty. So बड़ी रैली आई आज मार्केट में. You can say कि मार्केट ओवरऑल इट वाज ट्रेलिंग ऑन द आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप हुआ, उसके बाद उसको सस्टेन करके मार्केट एट द एंड इट वेंट अप about and it has given you a close about the resistance level, that is 17,800 was the resistance level which I was talking about yesterday in the yesterday's video which we have seen. So market is closed at 17,854. So now what to do next week on Monday? Today is the weekly close. Market last day tha, last day of the week. Friday ka closing ho gaya. Now what to do next week? We'll see in today's video. So let's start the analyzing part with the Nifty and Bank Nifty first. So what is happening over here? As I told you on the yesterday's video, the market was taking a support here. If you just put the trend line from this to this, so you can see over here, जो मंडे का जो लो बना था वो लो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में था. If I'll just remove this volume, just let me hide this. So यहाँ पे if you can just check, it was taking a support on the trend line over here. Okay. So उसके बाद क्या हुआ? I was telling you कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट नहीं है. So market में शॉर्ट was not there since past 3 days. Budget once like on Monday, on Wednesday budget was announced, and after the budget also it was sustaining the lower low level. और कल एक पॉजिटिव कैंडल बना था. सो आई हैव टोल्ड यू इट इज फॉर्मिंग लिटिल लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न. तो यहां से मार्केट केम डाउन, ओके, टच द ट्रेंड लाइन, वेंट अप अराउंड 61.8% to 50%, again came down from that level, again touched the trend line, and from that level it moves up. So now Nifty is looking after for the breakout with the target on the top around 18,200. ये वाला टारगेट पे आने के लिए it should give you a breakout. Now how to confirm the breakout? Let's understand that. So if I remove everything and if I draw the parallel line over here, कि यहां से ये वाली लाइन है अभी, okay, so this is the parallel line right now on the Nifty. So Nifty right now it is on the bigger rally right now. So there might be a chance कि मार्केट यहां से यही रेंज में जो चैनल के अंदर चल रहा है मार्केट यहां पे जाके टच हो जाए. इट इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन. ओके, सो यहां पे पैरेलल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है. सो देयर माइट बी अ चांस, बट उसमें एक छोटा सा ट्रिगर है, दैट इज ओवर हियर. अगर मैं इफ आई जस्ट वांट टू शो यू कि मार्केट ब्रेकआउट मंडे को कब लेगा, इन केस मार्केट अगर मंडे को ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मंडे का मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मंडे अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है और हमारा जो फर्स्ट कैंडल है, जो 15 मिनट का कैंडल है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं मेरे वीडियो में कि पहला कैंडल इंपॉर्टेंट है. अगर मॉर्निंग की रैली कैप्चर करनी है पोस्ट मार्केट के लिए, इफ वी आर वांट टू कैप्चर द नेक्स्ट डे रैली, दैट इज मंडे की रैली अगर कैप्चर करनी है, सो मार्केट इसके ऊपर चलना इंपॉर्टेंट है. तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जब ब्रेक करेगा तब हम इसमें लॉन्ग के लिए फाइंड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी विद द टारगेट ऑन द टॉप. So there might be a chance कि W पूरा कंफर्म करेगा. One more thing over here, अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं, as I was always tells you कि वीकली चार्ट में जब तक पॉजिटिव कैंडल क्लोज नहीं होगी मार्केट लॉन्ग की रैली नहीं है. तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लोज हो गई पॉजिटिव कैंडल, बट ऑन द ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो मंडे मॉर्निंग क्या कर सकते हो कि मार्केट में जैसे ब्रेकआउट होगा और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा ऊपर खुलेगा
तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, जो मैं 15 मिनट की बताता हूँ। इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, 15 मिनट की पहली कैंडल आपको देखना है, दैट इज यू नीड टू ओपन द 15 मिनट चार्ट। दिस इज tradingview.com। सो 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है, 15 मिनट का कैंडल देखना है। अगर पहला कैंडल, जैसे आज नेगेटिव था सुबह, आई हैव टोल्ड यू मार्केट इज लुकिंग लॉन्ग, बट फर्स्ट हाफ में वो लॉन्ग नहीं बन पाया। आई एम गिविंग यू अ पोस्ट मार्केट व्यू कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सुबह सुबह क्या करना है, उसके बाद आफ्टरनून में कैसा परफॉर्मेंस आएगा वो हम मार्केट देख के डिसाइड करते हैं। बट मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या करना है, दैट मोटा मोटा मैं आपको वो आइडिया दे देता हूं। तो नाउ ऑन मंडे मॉर्निंग 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हो गई, जैसे ये ग्रीन क्लोज हुई थी डे बिफोर, लाइक यस्टरडे की कैंडल जो थी वो ग्रीन क्लोज हुई थी, तो सेम वे कल के दिन, आई मीन मंडे के दिन, एक पॉजिटिव कैंडल अगर क्लोज हो गई और वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही क्लोज हो रही है, देन आई लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन निफ्टी अगेन ऑन मंडे। आज का दिन कैसा था कि आज नेगेटिव बना, तो हमारा मॉर्निंग सेशन वाज अ नेगेटिव। आफ्टर दैट आफ्टरनून में यहाँ पे कहीं आपको 5 मिनट के चार्ट में आप जाओगे तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे एंट्री कंफर्म हुई। अगर मैं यहाँ पे पीएसआर, जो मैं आपको एवरी टाइम बताता हूँ, पैराबोलिक सार जैसे ही ग्रीन होता है विद द पॉजिटिव कैंडल यहां से रिवर्स आया, सो दिस वाज द एंट्री पॉइंट हियर। ये वाला रिवर्सल नहीं है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव था, और नेगेटिव होते होते यहाँ पे ग्रीन बना, वापस नेगेटिव हो गया, बट यहाँ पे ये जो रिवर्सल था उसका सपोर्ट यहां लिया, एंड आफ्टर दैट इट हैज गिवन यू अ रैली ओवर हियर। तो बड़ी रैली यहाँ पे बनी, बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना। पीएसयू बैंक वाज द सेक्टर विच इज परफॉर्म टुडे। SBI, Canara Bank, and Bank of Baroda, all three has performed. It was from a bullish, you can say, morning star pattern was developed. We'll discuss it more long left on that. So I have picked the stocks for you for Monday. We'll discuss on this video again. So firstly, let's understand निफ्टी में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो लॉन्ग करना है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पे। इफ यू कैन जस्ट चेक, यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू दिखा है, आपने वो धमाल मूवी देखी है, धमाल में क्या होता है, डब्ल्यू के नीचे सोना है, डब्ल्यू के नीचे गोल्ड है, तो गार्डन में एक बड़ा सा डब्ल्यू बना हुआ होता है, वो डब्ल्यू के नीचे वहां पे गोल्ड पड़ा छुपाया होता है किसी ने, तो वो डब्ल्यू के नीचे वो गोल्ड ढूंढने जाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ पे दिस इज द डब्ल्यू। आइडर पैटर्न डब्ल्यू बनता है, आइडर पैटर्न ऐसा एम बनेगा, तो वो भी एम पैटर्न भी बनता है, डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है। So this is the W pattern which is forming over here. I'm not in the surprise कि मार्केट यहां कहीं पहुंच जाए। Okay, so there might be a higher chance over here। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और मंडे के दिन ये क्लोज हो गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट टिल W over here। W पूरा कंप्लीट करेगा। ओके, सो वीकली चार्ट में इसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो पॉजिटिव कैंडल बन गया है, सो वीकली इज आल्सो शोइंग मी पॉजिटिव। और अगर बैंक निफ्टी में अगर मैं वीकली चार्ट देख रहा हूं, सो इफ आई रिमूव एवरीथिंग और मैं नॉर्मल सा रिट्रेसमेंट बनाता हूं फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई, तो मार्केट कहां है, एग्जैक्टली एट 61.8% का गोल्डन फिबोनाची लेवल पर है। तो मार्केट में लॉन्ग डेवलप हो रहा है, we can look after for the long opportunity। Adani sector is the top performer over here। Market आज अदानी में क्या हुआ, let's see over here। The major stock was Adani Enterprise। It went down around 1000 rupees का भाव हो गया, 1017 का आज का लो है, 1017.45। So अदानी के स्टॉक्स में क्या करना है, let's understand today on Monday। तो अदानी के स्टॉक्स में आपको ऐसा करना है, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर, अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूं अदानी का विच वाज एट 1070। फर्स्टली डेली चार्ट पे आपको मैं लेवल दिखा देता हूं कि डेली चार्ट पे व्हाट हैपन ओवर हियर, कि मैं फिब एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करता हूं फ्रॉम दिस लेवल, इट वेंट डाउन, प्राइस गॉट रिजेक्टेड ओवर हियर। तो यहां से रिजेक्ट होके योर टारगेट वाज एट 238.2% का था, जब आज ये सुबह ब्रेक हुआ at around 1121, I think, just give me a minute, let me mark little correctly, yeah, this was the level 1113। वहां से it was churning back, it was turning back over that time, and बड़ी सी ब्लॉक डील आई at around 1174 के लेवल पे, लगभग 2 लाख शेयर की ब्लॉक डील आई, लगभग 20 करोड़ का वहां पे वैल्यूएशन पे
बाइंग आई, ब्लॉक डिल पड़ी वहां पे, तो इट वाज डेवलपिंग अ लॉन्ग ओवर हियर। हमारा ड्यूरिंग द मार्केट अवर्स पीएसआर ने उसमें एंट्री दी थी, देयर वाज अ एंट्री ऑन द डाउन साइड ओवर हियर। अगर मैं पीएसआर ऑन कर लेता हूं, तो दिस इज द पीएसआर, यहां की एंट्री बनी थी एट अराउंड 1204, और वहां से इट हैज गिवन यू बिगर रैली ओवर देयर। सो ओवरऑल नाउ व्हाट टू डू ऑन मंडे, अदानी एंटरप्राइज में अगर देखोगे, सो इट इज फॉर्मिंग अ रिवर्सल पैटर्न ओवर हियर, और इसको हम मॉर्निंग स्टार तो बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा गैप नहीं है, बाकी इक्वल मॉर्निंग स्टार होगा। सो मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ओके, सो थोड़ा सा इनकेस फ्लैट से या तो पॉजिटिव खुलता है अदानी एंटरप्राइज, और पहला कैंडल अगर ग्रीन बना, तो लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन अदानी एंटरप्राइज नाउ। ब्लॉक डिल आना शुरू हुई है, ओवरऑल अच्छे, लाइक यू कैन से अच्छे स्टेटमेंट्स आना चालू हो गए, एंड इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द लो नाउ। सो मंडे को वी कैन टेक अ चांस एंड यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन अदानी एंटरप्राइज एज वेल एज अदानी पोर्ट्स एज वेल। कि अदानी पोर्ट में भी इट इज फॉर्मिंग पॉजिटिव, 61.8% लेवल से वो रिवर्स हो रहा है। तो मंडे के दिन वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग, बट इट विल बी अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड। प्लीज ट्रेड विद द स्टॉप लॉसेस, और बड़ा स्टॉप लॉस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन साइज आपको बनाना पड़ेगा। तो look for the long opportunity on Adani Enterprise and Adani Port on Monday. So on my file, which I have mentioned always, I have given you this here. Adani Enterprise is the one of the stock I can look for the long. It is a high risk trade. और एक चीज इसमें आई हुई है, इफ यू जस्ट चेक द मंथली चार्ट, वो मेरे पास पीएसआर का कंफर्मेशन तो आया, बट मंथली चार्ट पे अगर मैं चेक करता हूं, सो इट इज टेकिंग अ सपोर्ट नियर 50-day मूविंग एवरेज। जो 50 मूविंग एवरेज है, ऐसे में बोलते हैं, ओके, इट वाज ऑन द अदानी एंटरप्राइज, इट हैज टेकन द सपोर्ट, नॉट द पोर्ट। अदानी एंटरप्राइज एग्जैक्टली वहां पे टच करके घूम गया, यू कैन सी टच किया, थोड़ा सा नीचे गया, एंड आफ्टर दैट इट गॉट रिकवर्ड। सो देयर वाज अ लॉन्ग, जब भी मंथली चार्ट पे कोई भी स्टॉक 50 डीएमए को टच करके अगर रिवर्स होता है, तो उसमें आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। एंड रिवर्सली अगर नीचे से अगर 50 एसएमए को टच करता है, नीचे की तरफ रिवर्स होता है, देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। So Adani Enterprise is the one of the reason I'm looking after for the long opportunity on Monday now again. So this is the stock number one you can look for. So what you can do on Monday, Nifty and Bank Nifty we can look for the long. अगर गैप अप हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ड्यूरिंग द डे जब भी अपॉर्चुनिटी बनेगी वी कैन लुक आफ्टर फॉर। देन स्टॉक नंबर 2 इफ वी लुक फॉर ऑन द एक्सेल शीट, विच इज एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों में सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है। पीएसयू बैंक आज परफॉर्म कर रहा था, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट काफी अच्छा है। सो ओवरऑल इसमें अगर मैं चेक करता हूं, तो फर्स्टली लेट्स चेक द एसबीआई। तो एसबीआई में यहां पे नीचे से बाइंग आ रही है, और आप यहां पे अगर इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आप चेक करोगे तो ये कैंडल का क्लोज है, दैट इज 527.35, ये कैंडल का क्लोज है दैट इज 528.10, और आज गैप अप ओपनिंग हुआ। तो गैप अप ओपनिंग में ये मॉर्निंग स्टार कंफर्म हुआ, सो देयर माइट बी अ चांस कि ये पूरा कैंडल कल कवर करेगा, ऑन मंडे इट विल कवर बैक। तो अगर 15 मिनट की कैंडल मुझे पॉजिटिव मिल जाती है, तो आई विल गो फॉर द लॉन्ग। सिंपल चीज करना है आपको, 15 मिनट के चार्ट पे जाना है, पहला कैंडल देखना है, पहला कैंडल पॉजिटिव बना तो लॉन्ग कर सकते हो फर्स्ट हाफ में विद द लो स्टॉप लॉस। सो दिस इज स्टॉक नंबर 2। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम रीजन है, इफ यू जस्ट चेक बैंक ऑफ बड़ौदा, so this is Bank of Baroda, huge buying opportunity was there today, ये क्लियर कट मॉर्निंग स्टार है, पूरा कैंडल कवर करता है मॉर्निंग स्टार में। So I'm expecting 169 as a target for Bank of Baroda on Monday. So look for the long opportunity on Bank of Baroda if the green candle it is forming. So this is stock number 3. Stock number 4, Asian Paint। मैं आपको एवरी वीक आपको फ्राइडे को एक कैंडल देता हूं, एक ट्रेड देता हूं जो गंदा परफॉर्म करता है थ्रू आउट द वीक। इसको हम बोल सकते हैं कि साइडवेज परफॉर्म किया या परफॉर्म ही नहीं किया थ्रू आउट द वीक। तो एशियन पेंट इज द वन ऑफ द स्टॉक, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। तो एशियन पेंट में अगर मैं चेक करता हूं, तो इफ यू जस्ट चेक द वीकली चार्ट, टुडे इज द वीकली क्लोज, फ्राइडे का क्लोजिंग है, तो आप एशियन पेंट का हाई और लो देखोगे तो वो प्रीवियस वीक का हाई भी ब्रेक नहीं किया है, लो भी ब्रेक नहीं किया है।
और वहीं के वहीं वो क्लोज हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। तो यहां पे मैंने हाई और लो मार्क किया है। तो आपको करना क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे जाना है और एशियन पेंट मंडे को देखना है या थ्रू आउट द वीक कभी भी देखना है। जैसे ये इसके ऊपर जाएगा, हाई के ऊपर जाएगा तो बाय करना, लो के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू डू इट ओवर हियर। So Asian Paint is, you can look for the long opportunity on Monday morning, you can look after. So Asian Paint is looking long. Then this is stock number 4. Then we can look for the Infosys long. Infosys में trending up with the volume. Infosys अगर IT sector देखोगे तो IT sector ऊपर जा रहा है। तो one of the stock is Infosys. Infosys का अगर daily chart check करता हूं, so this is the daily chart for the Infosys. So I'm expecting a target on Infosys is around this level at around 1627. तो अगर Infosys Monday morning को positive close हुआ, अगर यहाँ पे इफ यू कैन जस्ट चेक ये ब्रेकआउट हुआ है विद द वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे ऑन करूंगा तो यू कैन सी ओवर हियर वॉल्यूम अच्छे खासे ऊपर जा रहा है। So overall I am expecting a long with the target of 1627 on Infosys. आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना है। अगर मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:1 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अगर 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो अगर 5 रुपए का टारगेट नहीं मिल रहा है, इन्फोसिस बड़ा स्टॉक है, तो अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 30 रुपए का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, टारगेट मिलना चाहिए, तभी इसमें लॉन्ग कर पाओगे। सो यू नीड टू चेक, अगर बड़ा गैप अप हुआ तो इसमें एंट्री नहीं हो सकती, बट अगर फ्लैट खुलता है या डाउन भी खुलता है और पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है, then I'm interested for the long on Infosys on Monday. So this is the stock you can look for. Other than that, if we see the yesterday's result, कल मैंने आपको around 5 stocks दिए थे. If you can just check over here, every day we upload one video between 6 to 7. If you have not subscribed to our YouTube channel yet, please subscribe to this YouTube channel to get the regular update on the market. Overall, यहाँ पे every day मैं आपको कुछ स्टॉक्स देता हूं, इंडेक्स के बारे में बताता हूं कि क्या करना चाहिए मंडे को, फर्स्ट हाफ में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे को, या नेक्स्ट डे को कैसे ट्रेड करना चाहिए। आई एम एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, और उस चीज का हम लॉग बनाते हैं कि वो लॉग में हुआ क्या, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ एवरी डे। जहां से आप यहां पे देखोगे, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सिंस 9th of January. वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज फ्रॉम 9th of January, और मैंने ईच एंड एवरी ट्रेड यहाँ पे लॉक किया हुआ है, जो भी एंट्रीज बन रही है, और यहाँ पे हम उसका रीजनिंग लिखते हैं क्यों ले रहे हैं। यू कैन सी ओवर हियर, जो भी यहाँ पे ग्रीन है वो पॉजिटिव क्लोज हुए है, ऑरेंज है जिसमें एंट्री नहीं बनी, पहली 15 मिनट की कैंडल मैं जो कंफर्म करने बोलता हूँ वो एंट्री नहीं बनी, तो वो ऑरेंज है। एंड वन इज रेड जिसमें नेगेटिव क्लोज हुआ, लॉसेस कोई नहीं दिखाता है। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग यू द लॉसेस पार्ट एज वेल, बिकॉज इन स्टॉक मार्केट इट इज अ बिजनेस जिसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉसेस भी होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड कैन सेव यू, रिस्क मैनेजमेंट कैन सेव यू फ्रॉम द बिगर लॉस, so stop loss is necessary while doing trade. So overall, if we just check over here, yesterday I have given you about 5 trades. One is I like Nifty, Bank Nifty, which was long, but आज long बना, but after afternoon में long बना, so 15-minute की candle, it has not given me a positive close over here on Nifty. If we just check, ओके, सो पहली 15 मिनट की कैंडल रेड हो गई, दैट्स व्हाई ग्रीन इज इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ग्रीन होगा तो ही लॉन्ग करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाज लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई इन द आफ्टरनून जैसे ही कंफर्मेशन बना इंट्राडे का, इट वेंट अप। ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव था फर्स्ट कैंडल, तो मॉर्निंग सेशन में विद इन अबाउट 1 or 2 आवर्स उसमें वो लॉन्ग नहीं बना ओवरऑल, बिकॉज गैप अप ओपनिंग एंट्री था अबाउट 100 पॉइंट ऑन द निफ्टी, so it has not given me an entry for the long in the morning. आफ्टरनून में इट हैज गिवन मी। सेम वे बैंक निफ्टी भी पहला 15 मिनट का अगर कैंडल देखता हूं तो इट वाज नेगेटिव, सो इट हैज नॉट गिवन मी अ लॉन्ग। ओके, ओवर हियर, सो दिस इज 15 मिनट, लेट मी रीसेट द चार्ट ओवर हियर। ओके, सो फर्स्ट 15 मिनट में देयर वाज नो एंट्री ऑन द कैंडल ओवर हियर। इफ यू जस्ट चेक बैंक निफ्टी फ्यूचर, यू नीड टू चेक द बैंक निफ्टी फ्यूचर ओवर हियर। Okay, so इसमें फर्स्ट ग्रीन बना था, but it was sideways type of a pattern. So there were no entry not executed on the Nifty and Bank Nifty. Other than that,
Britannia I have given it, and Tech Mahindra I have given it. If you just check Britannia over here, so this is Britannia Industries over here. So first candle was positive and it was moving very sideways over here. Sideways move हो रहा था. So overall यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं कर रहा था ऑन अ 5 मिनट कैंडल. तो 5 मिनट की कैंडल पे जब मैं ट्रेल कर रहा था अकॉर्डिंग टू द PSAR पॉइंट, तो वो मेरा ट्रेल जाके हिट हुआ अराउंड दिस लेवल. यहाँ कहीं हिट होगा एट 4609. So I have made an entry over here. Trade log में Britannia was a long, which has 4629. Stop loss was 4569, and it is end up at 4604 was my trail, and it got triggered, and it has given me a small loss of 825 rupees on a capital of 3 lakh, and on a capital of 30 lakh, it has given me a loss of 8,250 rupees. Then you have Tech Mahindra, which has also given me a small loss today, which is about 380 rupees. If you just check Tech Mahindra over here, Tech M. So Tech M maybe first candle was negative. You need to check the 15-minute candle over here. So 15-minute candle पे यहाँ पे negative closing हुआ, and after that it went sideways, and my trailing stop loss got triggered in this as well. So Tech Mahindra was a short candidate, but it has triggered my stop loss as well on that. Okay, so by Tech Mahindra mein, it has given me a loss of 380 rupees. So all in all, today is the day where it has given me a loss of 1,205 rupees, which I am maintaining on the trading summary over here at 1205. So overall, if we can just check this month, on the last month, which we have taken the trade, I am maintaining the log since 9th of January. So last month we have made it about 73,599, which I have mentioned over here. 73,595.95. It is 99. Okay, which is return of about 24.5%, net profit of about 22% after brokerage and taxes. And this month we have made it about 4,780. I have not entered the budget days. जो strategy मैंने 31st को जो वीडियो बनाया था उसमें जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, because we are just trading post market over here. So 4,780 was the today's like you can say ये month का अभी तक overall result है. That is about 1.5% a month right now within 3 days over here. On a capital of 3 lakh. And on a capital of 30 lakh, you can able to make about 47,000 rupees on this month. So this is the overall structure. Okay. So यहाँ पे trading summary mention करता हूँ, and you can look after for the opportunity. जो भी opportunity develop होती है और reasoning of the trade वो मैं ये sheet में लिखता हूँ, और ओवरऑल यही शीट को हम वापस कल दिखाता भी हूं मैं आपको कि कल कौन सा स्टॉक में एंट्री बना, कौन सा में नहीं बना, कौन सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कौन सा टारगेट हिट हुआ, या कौन सा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना या लॉस ट्रेड बना. सो ओवरऑल सारे ट्रेड मेरा सक्सेस रेट देखोगे ऑन दिस पोस्ट मार्केट, द सक्सेस रेट इज अराउंड 66%. 60% इज द सक्सेस रेट. तो भी ओवरऑल वी हैव एबल टू मेड अबाउट 24% इन लास्ट मंथ. So this is the beauty of the risk management. जो भी losses है वो छोटे छोटे है, profit है वो बड़े बड़े है या medium loss profit है. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.